में सूखी पत्तियां अच्छी नहीं लगती. Back to cricket now. Two openers on the middle. With me, the evergreen commentator who done outstanding job so far in Mayor Cup 2021. Welcome Ajay. In Priyanshi studio is going to be two openers, Captain Hemant Patil and Akshay Chaudhary. These two are the openers. Is going to be Rushabh Kate open the bowling attack. Remember, in first match, Science Kharbo done an outstanding job. One of the big name in Bhiwandi City cricket. बहुत बड़ी टीम को परास्त किया था उन्होंने. अंडर फ्लडलाइट्स वो मुकाबला हुआ था जॉय कुमार टेमघर के विरुद्ध. हाई स्कोरिंग मैच था. हालांकि पलटवार अच्छा रहा था रनचेज में जॉय कुमार टेमघर टीम का भी. 3 ओवर में उन्होंने भी 47 रन बनाए थे, लेकिन आखिर के 2 ओवर्स में 26 रन जो चाहिए थे वो बना नहीं पाई जॉय कुमार टीम और इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई. तो खेल की शुरुआत पहली गेंद का सामना करते हुए कैप्टन हेमंत पाटिल. This time away from the office stump, white signal from umpire. So Rushabh Kate ball away from the office stump and Jay Masoba off the mark with extra. Jay Masoba Pimplas versus Science Sport Kharbon. Rushabh Kate turn from Asha Patil northeast end. Here we go. This time try to flashy cut. One small white signal, 2 consecutive white. This is the not a very good start from Rushabh Kate. बिल्कुल 2 लगातार वाइट गेंदे और शुरुआत में ही अपने आप पर उन्होंने दबाव बना लिया है. बल्लेबाज इससे पहले कि उनके ऊपर दबाव बनाते उन्होंने ही दबाव खुद के ऊपर बना लिया है और अब भी देखना है इसमें से वो किस तरह से बाहर निकल पाते हैं. Rushabh Kate. Ball this time played beautifully. Control cut shot away from his body to deep backward point. And with the stroke, Hemant Patil of the mark with single. Remember, Hemant Patil one of the good all-rounder. और बहुत ही जुझारू क्रिकेटर है हेमंत पाटिल. अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, बैटिंग भी उनकी बढ़िया होती है, तकनीक का अच्छा परिचय देते हैं. Parveen Kedia, please. तीन रन बिना किसी नुकसान के अभी अभी खेल की शुरुआत हुई है. जय मसूबा पिंपलास टीम पहले बैटिंग करती हुई. This time played beautifully over the infield. Ball is racing all the way to the cover for 4. Not a bullet stroke. Only clear the short cover fielder. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक अक्षय के बल्ले से. जगह मिली थी. ये देखिए थोड़ा सा बल्ला केवल अड़ा दिया है उन्होंने, ज्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया. एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर था, उसके बाई तरफ से कवर सीमा रेखा के बाहर इस मैच का पहला चौका. Ajay, I think slightly awkward looking stroke, but result in favor of batsman. He played away from his body. जी बिल्कुल शरीर से दूर खेला था, लेकिन फील्डर से भी दूर खेला. Score is 7 without loss. Kate turn. Ball this time fine delivery. Batsman looking for a switch it. Miss him outside the office stump. Good comeback. अच्छी गेंद. ऐसे लगा कि थोड़ा उंगलियां फेरना चाहते थे. हालांकि ये वाइड यॉर्कर थी, लेकिन बैट्समैन उल्टा शॉट खेलने की तैयारी में थे. सीधे बैट से अच्छे शॉट खेल लेते हैं, लेकिन इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलने का प्रयास. This time Akshay Chaudhary tapped as ball, soft and tap to covers, and with the stroke through for 1. 1-2 total now, 8 without loss. I think a good start from Jay Masoba Pimplas. Large batting to follow like Harshad Chaudhary, very dangerous player. Ajay Patil, Naneshwar Patil, Dinesh Chogle in Priyanshi studio. This time full toss, but not a very good stroke. Manage played only in deep cover. Higher full toss delivery. जय मसूबा पिंपलास टीम के नाम भी कीर्तिमान है इस टूर्नामेंट में. पहले राउंड के मुकाबले में सबसे बड़ा टोटल इस टूर्नामेंट का उन्होंने खड़ा किया था. 98 रन बनाए थे. हालांकि वो मैच 6 ओवर्स प्रति पारी का था, ये बात अलग है. उसके बाद 5-5 ओवर्स के मैचेस किए गए. This time try to try in front of the wicket, thick outside edge, rose to short third man, and with the stroke batsman through for 1. He tried to play on the up, resulting thick outside edge. That marks end of the first over.
I think not a bad total, not a good total. 10 without loss. पहली दो गेंदें वाइड, उसके बाद एक चौका भी आया था। तो शुरुआत खराब होने के बाद निश्चित रूप से थोड़ी बहुत वापसी की गेंदबाज ऋषभ काठे ने। और कहते हैं ना कि सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। क्या बात है, सुबह और शाम की बात हो रही है और शाम तो बहुत सुहानी रहती है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे। आज की आप 9वीं शाम थोड़ी देर में देखने जाएंगे। एक ओवर की समाप्ति, चैलेंज के इतिहास में एक पन्ना और जुड़ गया आज। आज वॉइस ऑफ भाईंदर मनीष पाटिल को इस मेगा इवेंट से मौका दिया गया है, चैलेंज स्पोर्ट और लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार ने। और इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिनेश चौगले को भी जाता है, जो बराबर किसमें क्या क्षमता है वो देखकर उसे आगे करते हैं। दिनेश चौगले का कल मुकाबला क्या रहा था, सुदर्शन की गेंदबाजी क्या रही थी। व्हाट अ मैच बिटवीन चैलेंज स्पोर्ट्स एंड चैलेंज बी। अजय पाटिल भी हमारे साथ, सभी का हार्दिक स्वागत है। गेंदबाजी के लिए सिद्धार्थ राप्टे इस सीजन में और पिछले सीजन में सिद्धार्थ राप्टे मात्र एक ऐसे गेंदबाज रहे जो बहुत किफायत रहे। भिवंडी प्रीमियर लीग में जब उनको मौका दिया, जब उसामा महंगे साबित हो रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी साइंस कारबाव से। और पहले राउंड के मैच में भी बढ़िया गेंदबाजी की थी इस युवा गेंदबाज ने। बायत से गेंदबाजी करते हैं सिद्धार्थ राप्टे, मैन फ्रॉम काम्बे। सिद्धार्थ राप्टे इस मर्तबा फ्लिक की हवा में, पीछे फील्डर है और बहुत खराब शॉट, मौका भी दिया और सिक्सर भी दिया। बहुत खराब फील्डिंग करण पाटिल, इनसे कैच छूटते नहीं, लेकिन देखिए गलती करण पाटिल कर बैठे। बहुत कम कैच छूटते हैं करण पाटिल से। हालांकि थोड़ा मुश्किल अवसर था, लेकिन इस तरह के कैचेस आपको लेने होंगे। बहुत बड़ी प्रतियोगिता आप खेल रहे हो। ये देखिए लॉफ्ट किया था, ओवर पिच गेंद थी, थोड़ा साइडवेज दौड़ना था उनको अपनी दाहिनी तरफ, हाथों में गिर गई थी गेंद। ये कैच जरूर था, कैच ड्रॉप हुआ है, बहुत महंगा साबित हो सकता है। जीवनदान मिला है अक्षय को। और इस मर्तबा फुल टॉस गेंद थी, बल्ले को छू कर पीछे चली गई है। क्रॉस स्वीप करना चाहते थे अक्षय चौधरी। कल तो क्या बल्लेबाजी रही थी देर रात विवेक पवार की। उन्होंने शॉट ऑफ द टूर्नामेंट भी खेला। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त हेलीकॉप्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला था मिड विकेट के ऊपर से, फ्लड लाइट्स की रोशनी में। बहुत बढ़िया बैटिंग की उन्होंने। इस मर्तबा अच्छी लंबाई की गेंद थी, पिछले पांव पे जाकर पुल लगाना चाहते थे हेमंत पाटिल। देखिए आज अगर दिन का मैच है, सिटी ओपन का मैच है, कहीं ना कहीं कैप्टन चाहेंगे 60 प्लस के ऊपर पहुंचा जाए। जिस तरह की बल्लेबाजी और इन फॉर्म बल्लेबाजी साइंस के पास है। कहीं ना कहीं गेंद के साथ भी यूज टू हो गए अब खिलाड़ी, इसलिए ज्यादा रन्स भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ की गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेला है और मिस फील्ड गेंद 4 रनों के लिए। फील्डिंग अब खराब होती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे मेरे ख्याल से प्रणय पाटिल थे जिनसे ये गेंद छूटी है। और ऐसे खिलाड़ियों से मिसफील्ड और कैचेस छूट रहे हैं जिनसे कभी भी उम्मीद नहीं की जाती है, अच्छे फील्डर्स माने जाते हैं। इम्प्रोवाइज तरीके से खेला हुआ स्ट्रोक था। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे सिद्धार्थ राप्टे, कहीं ना कहीं अनलकी रहे हैं इस ओवर में, कैच भी छूटा उनके ओवर में। और अब ये खराब क्षेत्र रक्षण डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर प्रणय द्वारा। लॉन्ग ऑफ पे महेश ठाकरे हैं, लॉन्ग ऑन पे दीपक मडवी हैं, दोनों मशहूर ऑलराउंडर। सिद्धार्थ राप्टे को कुछ टिप्स दिए वहां पर, लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, फिर बैठक खेलने की कोशिश और ये देखिए डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, अच्छा बैकअप किया दीपक मडवी ने, लेकिन कह दिया वहां पर विकेट कीपर ने कि चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को। कहीं भी देखिए अजय, फुटवर्क शॉट सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है। मोबाइल में नेटवर्क की जरूरत होती है और क्रिकेट में फुटवर्क की। बिल्कुल सही, चाहे फिर आप बॉलर हो, बैट्समैन हो या फिर फील्डर, आपका फुटवर्क बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस मर्तबा ब्लॉक आउट में गेंद थी, छोटी बैकलिफ्ट से टर्न करते हुए अक्षय चौधरी डीप वाइडिश मिड विकेट पर 1 रन, स्कोर 23 पे पहुंचा है। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। व्हाट अ मैच, पावर शेलार और खमालपाड़ा, क्या मुकाबला है। भिवंडी क्रिकेट टकराता हुआ थाना ग्रामीण से। गजब का मैच रहेगा।
सचिन भोयर पावर शिलार के कैप्टन जबरदस्त फॉर्म में है। दीनू भोयर की गेंदबाजी लाजवाब रही है, विंटेज नजर आए इस टूर्नामेंट में। खंबालपाड़ा टीम भी बड़ी मजबूत टीम है डोंबिवली ग्रामीण की। और ये महापौर चषक 2021 का बैनर विद्यमान महापौर मैडम और सो ड्रीम बेबी प्रियांशी। यस प्रियांशी और सो प्रतिभा ताई विलास पाटिल मैडम गो अहेड। ये बहुत ही जबरदस्त स्लोगन, मोटिवेशनल कोट आप कह सकते हैं, जबरदस्त संदेश दिया पूरी दुनिया को स्वर्गीय आर पाटिल साहब ने। और उनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो देखते ही बनती है। यही तो देखकर आप आगे बढ़े थे अजय घरत। जी बिल्कुल बिल्कुल, कई चैलेंजेस मेरे भी जीवन में भी आए हैं। और जब 2014 में मैं पहली बार यहाँ पर आया चैलेंज के टूर्नामेंट में कमेंट्री करने के लिए, कई मेरे सामने भी दिक्कतें थी, लेकिन बार बार गो अहेड की तरफ देखकर उसको मन में उतार कर मैं भी थोड़ा आगे बढ़ता रहा हूँ। कोशिश अभी भी मेरी जारी है, अभी भी कुछ खामियां है मुझ में भी, और इंसान खामियों का पुतला होता ही है। 23 रन बने हैं, ठोस शुरुआत पिंपलास टीम की। कुमार पहली गेंद पुल, चाबुक शॉट, रेंज रोवर स्ट्रोक 6 रन। क्या शॉट खेला है, अधिक छोटी गेंद नहीं थी और भेज दिया कुमार को रेंज रोवर के पास 6 रन। लाजवाब शॉट, खड़े खड़े बड़े बड़े प्रहार करते हैं अक्षय, यही खासियत है उनकी। ज्यादा फुटवर्क का इस्तेमाल ना भी करे तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन के बलबूते पर ये बड़े बड़े प्रहार कर लेते हैं। जैसे कि इस दफा खेला उन्होंने, ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को उठा के खेल दिया था, शानदार छक्का। अक्षय चौधरी ऊंची बैकलिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, शॉट को ऊंची बैकलिफ्ट से खेला था, बिठा दिया कुमार को रेंज रोवर में। कुमार गोराटकर, ओ बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी। कुमार भुईर गेंदबाजी कर रहे हैं, कमाल का शॉट खेला था। हालांकि ये भी देखिए, अगर साइंस खरबाव की तरफ हम देखते हैं तो 5 ऑलराउंडर के साथ खेल रही है। ये गेंद थोड़ी सी बाहर निकली थी कुमार की, थोड़े बहुत वेरिएशन जरूर वो दिखाते हैं। अक्षय को बहुत खूबसूरत ऑफिस टोस खेला, टक करते हुए ऑन साइड में, दूसरे की कॉल और तीसरे अंपायर की मदद। हालांकि रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तेज हुई थी। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ है इस गेंद पर। बहुत ही नजदीकी मामला नजर आ रहा है, क्योंकि थोड़ी सी गलती करते हुए नजर आए वहां पर कैप्टन हेमंत पाटिल। बल्ला उन्होंने पहले ऊपर ही रखा था, हवा में ही था, और बहुत देर बाद मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने बल्ला ग्राउंड करने की कोशिश की है। अभी देखना है पहुंच गए है या नहीं। जोखिम तो उठाया दोनों सलामी बल्लेबाजों ने। सुंदर टेलीकास्ट आप देख रहे हैं, प्रिंस मूवीज टेक्निकल टीम दौड़ा चैलेंज स्पोर्ट्स के सौजन्य से। रवि गुलवी, प्रथमेश पाटिल ऑनलाइन मैन, भावेश बारसी कैमरामैन, गुनेश दीक्षित कैमरामैन, विवेक गुलवी कैमरामैन, अमर पाठक कैमरामैन, नीरज बिलाल कैमरामैन, सचिन कैमरामैन, शिनू कैमरामैन, ओमकार भुईर ऑनलाइन स्कोरर जो हमारे प्रियांशी में, मनीष कुलवी और विकास रांधवी, ये वो लोग हैं जो अब तक महापौर चषक, विकास रणवी, ये वो लोग हैं जो अब तक महापौर चषक को, टेक्निकल टीम है उनकी, जो महापौर चषक को इतनी खूबसूरती से अब तक लाए। थैंक्स टू रवि, प्रथमेश एंड प्रिंस मूवीज। बहुत ही मुश्किल ये निर्णय नजर आ रहा है, तीसरे अंपायर भी अपना पूरा समय लेते हुए। देखिए गलती तो यही की है हेमंत ने कि बल्ला उनका हवा में नजर आ रहा है, लेकिन जब वो उन्होंने बल्ला ग्राउंड किया है तब क्या उससे पहले स्टंप्स बिखेर दिए गए हैं, यही देखते हुए अंपायर अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। अभी तक तो हवा में है, ये देखिए। भले ही टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कई बार इंटरनेशनल मैचेस में भी हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी उपलब्ध होने के बावजूद भी कुछ डिसीजंस ऐसे रहते हैं जो बहुत ही मुश्किल रहते हैं। वैसा ही ये डिसीजन है। और स्लो मोशन में देखना चाह रहे हैं अंपायर, ये देखिए
बुलर की तो तारीफ करनी होगी, जैसे ही गेंद हाथ में आई है उन्होंने स्टंप्स बिखेर दिए हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। और लाल बत्ती जलती हुई, बैट्समैन रन आउट, पहले विकेट का पतन, रन आउट के जरिए विकेट गिरा है। कैप्टन हेमंत पाटिल लौटते हुए पेविलियन में। जय मसोबा पिंपलास टीम का स्कोर अब 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। आज के दिन का कुल मिलाकर ये चौथा मुकाबला। आज का पहला मैच जो हुआ था वो ग्रामीण क्रिकेट से रहा था, जेएमबी टेमघरपाड़ा और वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली के बीच में। ताड़ाली टीम ने उस मैच को जीता, प्रेमचंद ने 44 रनों की धुआंधार पारी खेली। उसके बाद जय बजरंग गोरसई ए और मात्रेपाड़ा के बीच में मुकाबला ग्रामीण से हुआ था। जय बजरंग गोरसई ए टीम ने उस मैच को जीता। सूरज केने मैन ऑफ द मैच रहे, 27 रनों की शानदार पारी खेली। उसके बाद क्वार्टर फाइनल मुकाबला जूनियर क्रिकेट से हमने देखा, विक्टोरियन स्पोर्ट्स और अंजुमन के बीच में। अंजुमन ने वो मैच जीता और सेमीफाइनल में पहुंच गई है जूनियर कैटेगरी से। इस महापौर चषक 2021 में अंजुमन स्पोर्ट्स क्लब बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। नाजिश ने 43 रनों की धुआंधार पारी खेली मात्र 12 गेंदों में। और अब ये चौथा मैच आज के दिन का भिवंडी सिटी क्रिकेट। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए कुमार भुईर, सामना करेंगे बैट्समैन अक्षय चौधरी। इस मर्तबा फोर्स किया है डाउन द ग्राउंड, बहुत खूबसूरत शॉट, कोई मौका नहीं, 4 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं ऊंची बैकलिप से अक्षय चौधरी। ये सीधे साधे अक्षय नजर नहीं आ रहे। भरपूर ताकत है इस खिलाड़ी के पास, टाइमिंग इनकी लाजवाब होती है, तगड़े प्रहार करते हैं, पूरे दिल से खेलते हैं, पूरे ताकत से खेलते हैं। सामने खेला, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद था, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद था, आड़े बैट से सामने प्रहार किया है, गजब का शॉट। अक्षय चौधरी सामना करें कुमार भुईर का। इस मर्तबा स्लॉक किया, हवा में गेंद है, फील्डर उसके नीचे। अब कोई गलती नहीं की करण पाटिल ने और आउट हो गया अक्षय चौधरी। आउट होने से पहले बढ़िया बल्लेबाजी की और कुल मिलाकर 25 रन अपने टीम के लिए बनाए। व्हाट इनिंग ही प्लेड, बिग एंड देना चाहिए। कुछ बहुत ही दर्शनीय शॉट खेले अक्षय चौधरी ने अपनी इनिंग में। जी बिल्कुल, लेकिन ये शॉट कहीं ना कहीं गलत था। बहुत ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, उसको ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया उन्होंने, जिस वजह से मिस टाइम कर बैठे और एक आसान सा कैच डीप में। लेकिन बढ़िया नींव रखी उन्होंने अपनी टीम के लिए। तो दोनों भी ओपनर्स अब पेविलियन में लौट चुके हैं। स्कोर 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 34 रन बने, बल्कि 34। स्क्रीन पर थोड़ा करेक्शन करना होगा क्योंकि इससे पहले जो गेंद हमने देखी थी उस पर चौका आया था, छक्का नहीं चौका आया था। 34 रन्स ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। पावर शेलार के कैप्टन और एसएससी खंबालपाड़ा के कैप्टन दोनों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। उसके बाद आप देखेंगे वड़ाल देवी स्पोर्ट ताड़ाली और घोड़सई ए के बीच में मुकाबला। उसके बाद बर्फानी बाबा घोड़सई और आर्यन स्पोर्ट्स भादवर गिरामीन। बैक टू बैक 3 गिरामीन के बड़े मुकाबले हैं। इस बीच ऑफ स्टंप से ज्यादा बार वाइट घोषित किया अंपायर ने। 1 रन और स्कोर में आता हुआ स्कोर 35 रनों पे पहुंचा है। बढ़िया शुरुआत हम देख रहे हैं जय मसोबा पिंपलास की। ओवर नंबर 3 चल रहा है। ब्लॉक होल्ड में गेंद थी, छोटी बैकलिप से कवर ड्राइव कैप में लगाते हुए 1 रन बना। दूसरा लेना चाहते थे, मना किया वहां पर बैट्समैन करण ने। हर्षद चौधरी का खाता खुला। अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है मैं समझता हूँ हर्षद चौधरी के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, मिडिल ऑर्डर में एक अच्छी पारी वो खेल सकते हैं अपनी टीम के लिए। ऑफ साइड में बहुत दिलकश ड्राइव्स लगाते हैं, बड़े बड़े प्रहार भी कर सकते हैं ऑन साइड में। ये देखिए वीआईपी बॉक्स, एडवोकेट मयूरेश पाटिल वहाँ पर, उनके साथ उनके मित्र भी है, साथ में चैलेंज स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर्स है, विश्वास जी भोई, उमेश चौहान, सचिन पवार। पावर शेलार के कैप्टन आ चुके हैं, एसएससी खंबालपाड़ा के कैप्टन। लास्ट ऑफिशियल कॉल है क्योंकि 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर के बाद टॉस होता है। 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पे करण रन है। ये आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का चैलेंज स्पोर्ट्स पालन कर रही है।
10% हम एंट्री दे रहे हैं, हालांकि मैदान पे इस वक्त 2% लोग होंगे। इस बीच गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, बहुत खूबसूरत शॉट, गेंद डीप पॉइंट पे गई है, दूसरे के लिए पलट चुके हैं बैट्समैन। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक खेला वहां पर बैट्समैन हर्षद चौधरी ने। हर्षद चौधरी अच्छे टच में है। आपने देखा कि साउथ स्टैंड अजय पूरी तरह से खाली है। 10% को बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल महापौर चषक के हम एंट्री दे रहे, वो भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। रपटे, अच्छा ड्राइव, आंखों के नीचे, लॉन्ग ऑन पे दीपक मडवी के पास 1 रन आता हुआ स्कोर 39 रनों पे पहुंचा है। हर एक गेंद को मिडल कर रहे हैं हर्षद चौधरी, और उसका ज़रूर फ़ायदा हो सकता है आने वाली गेंदों में। अब शायद वो तुरंत अपने गियर्स भी चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादा गेंदें शेष नहीं है, चौथे ओवर का खेल चल रहा है। जी हाँ, दर्शकों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैच का लुत्फ उठाए, ऑनलाइन यूट्यूब पर या फिर केबल नेटवर्क पर घर बैठकर इन मैचेस का आनंद ले। बिल्कुल, क्योंकि 10% के ऊपर किसी को भी अंदर नहीं लिया जाएगा। सिद्धार्थ का दूसरा ओवर थोड़े महंगे साबित हुए हैं, हालांकि पहले ओवर में 13 रन खर्च किए थे, बल्कि 12 रन, और इस ओवर में अभी तक 2 गेंदों पर 3 रन उन्होंने खर्च किए हैं। खामलपाड़ा के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल अथवा आपको पैनलाइज किया जाएगा। टॉस के लिए आना है एसएससी खामलपाड़ा। सिद्धार्थ राप्टे कमाल की सीजन में बॉलिंग कर रहे हैं और हर्षद चौधरी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छा बैटल, इस मर्तबा ज्यादा बाहर कर बैठे वाइट। करण के पास इस समय स्ट्राइक है, और करण भी बहुत बढ़िया स्ट्राइकर है टेनिस क्रिकेट बॉल के, खासतौर पर डाउन द ग्राउंड बहुत ही बढ़िया शॉट्स खेलते हैं लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी। सिद्धार्थ एक बार फिर से चले, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ओ बढ़िया गेंद, स्विंगिंग यॉर्कर, ओ चूक गए वहां पर। बचपन में सिद्धार्थ राप्टे ने कंचे गोटियां कम खेली। मौका अच्छा था, तीनों स्टंप सामने थे, लेकिन उसके बावजूद भी सटीक निशाना देखने को नहीं मिला। बहुत अच्छी गेंद थी ये, यॉर्कर लेंथ, बैट्समैन को मौका ही नहीं दिया हाथ खोलने के लिए। 40 पर रुका हुआ है स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। एक अच्छा टोटल अभी तक के खेल में बना लिया है जय मसूबा पिंपलास टीम ने। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं सिद्धार्थ राप्टे, लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स। बढ़िया गेंद, थोड़ा आगे रखा था, लेकिन हल्का सा नेचुरल स्विंग था गेंद में। आइए देखते हैं किस तरह से। ये देखिए कमाल की बॉलिंग, और गेंद थोड़ी नीचे भी रही थी टिप्पा खाने के बाद। क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से गेंद अंदर की तरफ आई थी एंगल के तहत। गेंद में कोई मूवमेंट हवा में तो नहीं था, और अब द सरफेस भी मुझे नहीं लगता है, लेकिन वो एंगल क्रिएट कर रहे हैं। सिद्धार्थ राप्टे इस मर्तबा लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, बहुत तेज स्ट्रोक, मौका नहीं दीपक मडवी के लिए। पहले बाउंस पर गेंद 4 रन। हालांकि अपने आप को झोंक दिया था दीपक मडवी ने, लेकिन गेंद बहुत तेज रफ्तार से निकल गई। ये देखिए हैंड रॉय कोऑर्डिनेशन लाजवाब। बहुत बढ़िया एफर्ट दीपक मडवी का, और ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। देखना है पूरी तरह से फिट है या नहीं दीपक मडवी, गंभीर भी हो सकता है मामला। थोड़ी सी दूर थी गेंद उनसे, बहुत तेज स्ट्रोक था, और महत्वपूर्ण बाउंड्री जय मसूबा पिंपलास टीम के लिए करण के बल्ले से। कमालपाड़ा के कैप्टन आ रहे हैं, तुरंत ही आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। स्कोर इस वक्त इस चौकी की मदद से आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है मसूबा पिंपलास का 44 रन। एक अच्छा टोटल हम कहेंगे अजय। चौथा ओवर चल रहा है, देखना है कि दीपक मडवी क्या फील्डिंग कर पाएंगे या नहीं, या उनके ज्यादा चोट आई है। ज्यादा गंभीर मामला नजर नहीं आ रहा है, वो तुरंत खड़े भी हो गए, उठ गए, और लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। जी हाँ, कई इंसिडेंट्स है। केपीएल जो हुआ था कृष्णा प्रीमियर लीग, विशाल पाटिल जो महिंद्रा में खेलते हैं, ग्रामीण के एक मैच में साइड स्क्रीन के सामने उनके साथी से उनकी टक्कर हो गई, वो कोमा में चले गए थे, और 8 दिन बाद कोमा से अच्छे होकर आए
और फिर एमएलए ट्रॉफी में 6 गेंदों में 6 सिक्सर मारे। यानी कि गेंदबाज को कोमा में भेज दिया उन्होंने उसके बाद। यस। जमा को भी बड़ी गंभीर चोट लगी थी एक बार। इस मर्तबा उछाल दिया गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर, स्टैंड में 6 रन, स्टैंड एंड डिलीवर स्ट्रोक करण का। देखिए यही इनकी ताकत है, मैंने पहले ही जिक्र किया था कि डाउन द विकेट बहुत अच्छे शॉट्स खेलते हैं वो, डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की दिशा में। लोअर फुल टॉस गेंद थी लेकिन क्या जबरदस्त टाइमिंग है, क्लीन स्ट्राइक। आपने जमा की बात की, मुकाबला हो रहा था चैलेंज बनाम बी इंडियन, और आरके ट्रॉफी 2000 जो आखिरी आरके ट्रॉफी हुई थी जो महिंद्रा स्पोर्ट्स ने जीती 2015, ये मुकाबला इतना कट टू कट था, 1 रन चाहिए था, मिड ऑन और मिड ऑफ लगाया। इरशाद अंसारी जो मिड ऑन पे फील्डिंग कर रहे थे, मिड ऑफ पे जमा, 4 ओवर में 50 रन आए, खतरे की घंटी, और दोनों के बीच में टक्कर हुई थी। मुझे याद है कि जब बी इंडियन टीम निकल रही थी तो उन्होंने कह दिया था चैलेंज से कि आप आगे खेलिए। यस। स्ट्रोक तुषार शेळके का था। यस यस, तुषार शेळके ने चिप किया था बॉलर के ऊपर, बॉलर के सर के ऊपर, और वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। हालांकि उसके बाद जमा लगभग 1 साल तक क्रिकेट से दूर रहे। 50 रन 2 विकेटों के नुकसान पर वाकई में खतरे की घंटी बज गई है साइज खारबाव टीम के लिए। हालांकि खारबाव टीम की बल्लेबाजी भी बड़ी मजबूत है, वो पहले मैच में देखने को भी मिला इस मेयर कप में। दीपक मडवी फिट है, गेंदबाजी के लिए तैयार। इस सीजन में सबसे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं साइंस के लिए। इस मरतबा ब्लॉक आउट में गेंद थी, टर्न कर दिया ऑन साइड में, 1 रन। कलाइयों का कलात्मक उपयोग। अच्छी बल्लेबाजी पूरे पारी में देखने को मिली है। शुरुआत अक्षय ने बढ़िया की, 25 रनों की शानदार पारी खेली। हेमंत पाटिल हालांकि ज्यादा योगदान नहीं दे पाए, 6 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन ये 2 बल्लेबाज बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। हर्षद और करण खासतौर पर 1 चौका और 1 छक्का लगाकर 10 पर बैटिंग करते हुए। दीपक मडवी इस मरतबा बैकफुट पे गए, फोर्स किया गैप में, बहुत खूबसूरत शॉट, कोई मौका नहीं, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, 4 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है, गैप को बहुत ही खूबसूरती से ढूंढा जा रहा है। हालांकि ये देखिए गेंद उनकी थोड़ी बल्ले के अंदर लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी आउटफील्ड बहुत तेज है। आउटफील्ड तेज होने का ये फायदा मिला है बैट्समैन करण को। बल्ले के अंदर लगने के बावजूद भी बहुत तेजी के साथ निकल गई गेंद लॉन्ग ऑन के दाहिनी तरफ से 4 रनों के लिए। शॉट में रोहित शर्मा की झलक, इस तरह के शॉट बहुत ज्यादा खेलते हैं रोहित शर्मा। दीपक मडवी इस सीजन में बहुत ही कारगर गेंदबाज रहे हैं और बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की पूरा सीजन। इस ग्राउंड पे तो दीपक मडवी की कई मेमोरीज है। व्हाट अ प्लेयर इज। इस मरतबा आगे रखा था, करारा ड्राइव, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ, कुमार भोईर ने गेंद को उठाया, 2 रन। बल्लेबाजी में तो बहुत जान नजर आ रही है। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था ये, ऑफ ड्राइव ऑन ड्राइव, ये शॉट्स देखते ही बनते हैं। घास से चिपकी हुई गेंद चली गई थी वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ। बढ़िया पार्टनरशिप दोनों भी बल्लेबाजों के बीच में, जो प्लेटफॉर्म मिला उसका अच्छा फायदा उठाया है खासतौर पर करण ने। मडवी की गेंद, ड्राइव किया डाउन द ग्राउंड, फिर से कुमार एक्शन में, लेकिन इस मरतबा 1 रन। बहुत बढ़िया थ्रो, सीधा बेस पे आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ मसूबा पिंपलास का पहुंचा है 58 रन। एक अच्छा टोटल मैं कहूंगा अजय गरत अभी तक बना है। आप देख रहे हैं मापुर चषक 2021। लगता है ये मैच काफी रोमांचक होगा, मुझे ऐसे लग रहा है, ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है। दीपक मडवी उछाल दिया गेंद को सीधा, ओ क्या एफर्ट है वहां पर, महेश ठाकरे थे। कमाल है, ऐसा भी क्रिकेट हो सकता है। उड़ता हुआ महेश ठाकरे और गेंद को उन्होंने अंदर धकेला। ये देखिए लगा था कि ये छक्का ही होगा, और छक्का ही था वैसे देखा जाए तो, लेकिन ऊपर उछले, अपने हाइट का भी इस्तेमाल किया उन्होंने और गेंद को अंदर धकेला। 4 रन बचा अपनी टीम के लिए। जबरदस्त फील्डिंग महेश ठाकरे द्वारा। स्पाइडरमैन बन गए थे, उछल कर अंदर फेंक दिया। अच्छी गेंद, स्विंगिंग यॉर्कर, और ये देखिए कोयबा थ्रो अंडर एंड, आउट कर दिया बैट्समैन को।
तो कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति पे जय मसोबा पिंपलास टॉस हार के बल्लेबाजी करती हुई कुल मिलाकर रन बने 60। अच्छा टोटल 61 की चुनौती, आस्किंग रन रेट 12.20 का। आइए अगले टॉस की तरफ हम चल रहे हैं। ग्रामीण क्रिकेट का महासंग्राम पावर शेलार बनाम एसएससी खम्बालपाड़ा, और टॉस करने के लिए वहां पर आज एक और कमेंटेटर का इतिहास जुड़ गया है। महापौर चषक में वॉइस ऑफ भाईंदर मनीष पाटिल मौजूद है। इज ओवर टू मनीष पाटिल इन टॉस बॉक्स। धन्यवाद सिद्धीजी. तर मी नाणेफेकीची प्रक्रिया कंप्लीट करण्यासाठी हायलाइट चालू आहेत. आपण हायलाइटचा आनंद घेत आहेत. नक्कीच खूप चांगलं कॅमेरा वर्क तुम्हाला प्रिन्स मूवीचं अनुभवायला मिळते. गेल्या कित्येक दिवसापासून 8 दिवसांपासून तुम्ही या मॅचेस पाहतायत आणि आम्ही प्रेक्षकांना मात्र इकडे अलाव केला नाही. फक्त 10%च आपण हे स्टेडियम भरलेलं पाहतोय आणि बाकी 90% प्रेक्षकांसाठी आपण घर बसल्या या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी प्रिन्स मूवीच्या माध्यमातून एक चांगली तरतूद केली आहे, तडजोड केली आहे आणि प्रतिसाद देखील चांगला मिळतोय. कारण प्रेक्षक देखील घर बसल्या आपल्या LED स्क्रीनवर या सामन्यांचा आनंद घेत आहेत आणि खूप चांगला प्रतिसाद मिळतोय. मेयर चषक 2021 ला तर विनंती करते RR कंपनीचे मालक सन्माननीय पंढरीनाथ तरीजी, प्लीज तुम्ही नाणेफेकीसाठी यायचे. RR कंपनीचे मॅनेजर सन्माननीय पंढरीनाथ तरीजी, तुमच्या शुभ हस्ते या सामन्याचा नाणेफेकीचा पालवर आहे आणि सामना असेल SSCC खंबाळपाडा आणि पावर शेलार. एका बाजूस महापौर चषक आणि एका बाजूस चॅलेंज ची आपल्याला प्रतिकृती पाहायला मिळते. तत्वर मध्ये तुम्ही यस. तर कॉल कोण करेल? पावर शेलर कॉल करेल. चॅलेंज पुन्हा एकदा टॉस करूया आपण. थोडस अडचण झाले. आपण टॉस पुढे करा सर. थँक्यू. तुम्ही मागे या, फक्त टॉस पुढे जाऊ द्या. महापौर चषक कॉल केला जातोय. महापौर चषक अंकित केलेलं नाणं वरते. मी पाहुण्यांना विनंती करतो आपण सन्मानपूर्वक VIP बसू शकता प्लीज. थँक्यू. तर नाणेफेक जिंकले पॉवर शेलारने. तर पॉवर शेलार नाणेफेक जिंकल्यानंतर निर्णय काय असेल? फिल्डिंग असेल. बघा 2 मॅचेस तुम्ही जिंकलायत आणि 2 मॅचेस जिंकल्यानंतर एक अनुभव आलाय या चॅलेंज ग्राउंडचा. तर काही चेंजेस पाहायला मिळतील का तुमच्या संघामध्ये? नाही, आमची ती टीम खेळणार आहे. आणि आपण जर या स्पर्धेमध्ये बॉलचा विचार केला तर लाईट वेटेड बॉल आपण वापरतोय. तर इव्हन आपण खेळतो ते हेवी वेट बॉल असतो आणि लाईट वेट बॉलने खेळायचंय. तर यासाठी तुम्ही काय वेगळा सराव केला होता का? हो नक्कीच. आम्हाला जेव्हा समजलं की लाईट बॉल वापरणार आहे तर आम्ही लगेच तेच बॉलाने प्रॅक्टिस केली आणि त्याच बॉलाने आम्हाला हा ग्राउंड पण माझा होम ग्राउंड आहे तर मला काही प्रॉब्लेम नाही. तर मी त्या बॉलाने चांगलाच खेळतो. सर्वात जास्त विश्वास तुमच्या संघातला तुमचा कुणावर आहे? दिनोका आकाश आहे, कल्पेश आहे आणि कपिलेश आहे आणि प्रशांत परदेशी. कुठल्या धावांच्या आकड्यापर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल SSCC खंबाळपाडा संघाला? 50च्या आत थांबवायचा प्रयत्न करू. तर फलंदाजी करायची आहे. मनाप्रमाणे निर्णय आलाय की मनाविरुद्ध? ऍक्च्युली आम्ही पण प्रथम क्षेत्ररक्षण करणार होतो पण जे आहे त्याला पण नेहमीच आपण पाहतो प्लॅन A आणि प्लॅन B असतो. तर आता तुम्हाला प्लॅन B वापरावा लागेल. तर कुठला मॅजिकल फिगर आहे ज्यापर्यंत पोहोचायचा तुमचा प्रयत्न असेल? या ग्राउंडवर ऍक्च्युली कुठला फिगर सांगू नाही शकत. त्यांची समोरच्या संघाकडे फलंदाज पण चांगले आहेत तर ते चेस करायची क्षमता ठेवतात. जास्तीत जास्त धावा कुठण्याचा आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू. बघा सकाळी वातावरण थोडंसं थंड होतं पण आता दुपारी मॅचेस सुद्धा गरम होत आहेत आणि वातावरण सुद्धा गरम होते. तर या वातावरणाचा तुमच्या खेळावर काय परिणाम होईल का? ऍक्च्युली पहिला सामना आम्ही संध्याकाळच्या सत्रात खेळलो, दुसरा सामना नाईट मध्ये खेळलो. तर ही एक नवीन चॅलेंज आमच्यासाठी. बघू, आम्ही चांगल्यात चांगला त्याचा यूज करायचा प्रयत्न करू. तर टॉस बॉक्समधून निर्णय असा आलाय की नाणेफेक जिंकले पॉवर शेलर संघाने आणि पॉवर शेलर संघ नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि SSCC खंबाळपाडा संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा. बॅक टू प्रियांशी स्टुडिओ. थँक्यू. बहुत बहुत धन्यवाद मनीष पाटिल. चलते खेल की तरफ. बड़ी चुनौती 5 ओवर्स में 61 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए साइश खारबाव टीम को. नंदन पाटिल और उनके साथ उनके पार्टनर पारी की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं. मोनिश भारी भरकम शरीर के तगड़े बल्लेबाज. नंदन पाटिल अच्छे टच में नजर आए. ग्रामीण क्रिकेट में एक मैच में मैन ऑफ द मैच बने हैं इस महापौर चषक में. और सिटी क्रिकेट का जो पहला मैच खारबाव टीम ने जीता था उसमें भी बढ़िया शुरुआत की थी नंदन ने पहले ओवर में. हालांकि बहुत लंबी पारी नहीं खेल पाए थे लेकिन
अच्छे टच में नजर आए थे। पहले ओवर में एक चौका और एक छक्का उन्होंने जड़ा था। अच्छी शुरुआत करके दी थी अपनी टीम को। पहला ओवर लेकर गेंदबाज राजन पाटिल, एक सीनियर खिलाड़ी। पहली गेंद नंदन के लिए, जगह मिली है, कट कर दिया हवा में गेंद जरूर, लेकिन फील्डर तक पूरी तरह से कैरी नहीं हुई। अच्छा क्षेत्ररक्षण डीप पॉइंट की तरफ पहले बाउंस पर फील्ड किया था फील्डर ने। पहली गेंद पर सिंगल, खाता खुलता हुआ नंदन पाटिल का और साइश खारबाव टीम का। 12.20 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं पारी की शुरुआत से खारबाव टीम को। और इतना बड़ा लक्ष्य यदि आपको छूना है तो जरूर अच्छी शुरुआत की आवश्यकता। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट। ओ बहुत अच्छी गेंद, अपील और आउट। किनारा लगा था बल्ले का, बहुत ही शानदार कैच विकेट कीपर द्वारा। गति परिवर्तन में फंस गए बैट्समैन। राजन पाटिल काफी अनुभवी गेंदबाज हैं। ये देखिए गति परिवर्तन था, एज एंड गॉन। आज नंदन पाटिल का जन्मदिन है अजय घरत, और देखना है कि जन्मदिन पे नंदन पाटिल क्या करते। मैंने पहले ही कहा था कि एक अच्छा टोटल सेट किया है मसोबा ने, और राजन पाटिल बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है, मैन फ्रॉम दापोडे। इस ग्राउंड पे 2017-18 में लेट देवीदास कप जो हुआ था उसके वो बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, और कुल मिलाकर 11 विकेटें ली थी। हालांकि बीच में एक ऐसा दौर आया जब राजन पाटिल लगातार राउंड द विकेट गेंदबाजी किया करते थे दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के विरुद्ध। पहली गेंद से वो राउंड द विकेट जाते थे, लेकिन अब देखिए इस मैच में वो ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरी गेंद पर सफलता प्राप्त कर ली है। 19 पर आउट हुए। नए बैट्समैन आए हैं प्रणय पटेल, और आते ही स्लॉग स्विप। फील्डर मौजूद है डीप में, आसान सा कैच सीधे डीप मिड विकेट के गोदी में खेल बैठे। एक और विकेट का पतन। अजय आपको लगता नहीं कि वो मैच दूसरा था, ये मैच दूसरा है? उस मैच की प्लानिंग कुछ और थी, इस मैच की प्लानिंग कुछ और होना चाहिए थी। यहाँ भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में फंस गए और दूसरा विकेट, और राजन पाटिल हैट्रिक पर। अब तक 4 हैट्रिक हो चुके हैं महापुर चषक में। जी हाँ, वो मैच दूसरा था, ये मैच दूसरा है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि ये खेल भले ही पुराना है, लेकिन हर गेंद नई होती है, हर मैच नया होता है, और हर क्षण नया होता है इंसान के जीवन में। तो उस क्षण की नजाकत को समझते हुए आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, गेंदबाजी करनी पड़ेगी। नए बैट्समैन करण पाटिल बल्लेबाजी को आए। इस समय ऑफिशियल स्कोरर आसिफ रंगरेज का शुभ आगमन होता हुआ उनका हार्दिक स्वागत। आसिफ रंगरेज और अल्पेश गायकवाड़ दोनों ने लाजवाब स्कोरिंग की है पूरे टूर्नामेंट में। 2 गेंदों पर 2 विकेटें, कमाल की शुरुआत करते हुए अनुभवी गेंदबाज राजन पाटिल। और कैच लपका था हर्षद ने। थोड़ी देर में हरीश पंड्या भी जुड़ जाएंगे। नए बैट्समैन करण पाटिल आए हैं, अंडर प्रेशर आए हैं। हैट्रिक गेंद का सामना करना है उन्हें। हैट्रिक गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया शॉट, बैक फुट पर जाकर निकाल दिया है इनफील्ड के ऊपर से। 4 रन। Great stroke with given by Rajan Patil. Interesting to see in replay. You can see there short, wide and punished. Cracks it over the infield. Look at that, punch it very hard. One bounce through the covers for 4. Great stroke. कितनी बार ये नज़ारा देखने को मिलता है, हैट्रिक गेंद पर बैट्समैन चौका या फिर छक्का लगाते हैं, और ये सब आपको टेनिस बॉल क्रिकेट के खेल में ही देखने को मिलेगा। काउंटर अटैक बहुत जल्द देखने को मिलता है टेनिस बॉल क्रिकेट के खेल में। यही तो सबसे बड़ी खासियत है टेनिस क्रिकेट की। अगली गेंद, इस बार बैट का फेस खोला है, दिशा दिखाई है मात्र डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। फील्डर तैनात, डीप में से फील्डर आते हुए गेंद पर 1 रन। अच्छी बल्लेबाजी, पिछली गेंद पर चौका चढ़ा उन्होंने, और जानते हैं कि उनका विकेट महत्वपूर्ण है। 2 बल्लेबाज पहले ओवर में आउट हो चुके हैं, तो यहाँ से विकेट गंवाना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करने वाली है खारबाव टीम। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। लक्ष्य है 61 रनों का। रिक्वायर रेट पर एक नजर रखनी पड़ेगी बल्लेबाजों को। नंदन के कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। राजन की अगली गेंद, इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे,
चूक गए और विकेट कीपर बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं स्टंप्स के पीछे। सचिन मस्के बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग करते हुए एक अच्छा कैच भी लपका उन्होंने। ओवर की समाप्ति, सफल ओवर समाप्त हुआ राजन पाटिल का। एक ओवर के बाद स्कोर 6 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर साइश खारबाव। देखिए अजय, अब आस्किंग रन रेट का दबाव बढ़ चुका है। एक ओवर में 6 हुए हैं और बचे हुए 5 ओवर है, उसमें 55 रन चाहिए। 4 ओवर में जो आस्किंग रन रेट है वो 14 के ऊपर चला गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बल्लेबाजों को थोड़ा आक्रामक खेलना पड़ेगा। रिक्वायर्ड रेट के अनुसार बैटिंग करनी जरूरी है, नहीं तो फिर आखिर के 2 ओवर्स में फिर यदि 35-40 रन बाकी रह जाते हैं तो फिर आपके पास विकेटें हाथ में होने के बावजूद भी आप कई बार मैच हार जाते हो। तो दोहरी चुनौती है, विकेट्स भी आपको सुरक्षित रखने हैं, तेज गति से रन्स भी बनाने हैं। कंडीशंस बहुत बढ़िया है मैं समझता हूँ बल्लेबाजी के लिए। तेज कड़ी धूप खिली हुई है मैदान में, अच्छे से आप टाइम करते हो तो जरूर आपको अच्छे रन्स मिलते हैं यहाँ पर। आउटफील्ड बहुत ही तेज है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। नेवर लेकर कैप्टन हेमंत पाटिल तैयार होते हुए। देखिए हेमंत पाटिल भी बहुत अच्छे गेंदबाज है। कालेर कप जो हुआ था 2018 में, जो समाप्त हुआ था 23 मार्च 2018 को, वो बेस्ट बॉलर ऑफ दी टूर्नामेंट रहे थे और उन्होंने एक इनिंग में 5 विकेटें ली थी और कुल मिलाकर 13 विकेटें। जहाँ धनेश 11 के विरुद्ध वो मुकाबला था, हालांकि वो मैच जीत नहीं पाई थी उनकी टीम। शॉर्ट पिच गेंद और धमाकेदार शॉट, लेकिन कैच, ओहो हो, कमाल का कैच लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। लग रहा था कि गेंद बाहर जा रही है। देखिए बैकफुट पे जाके फोर्स किया था। फोर्सिंग स्ट्रोक इतने आसान नहीं रहते हैं। पिछले पांव पे चले गए थे, फोर्स किया था, जबरदस्ती में जबरदस्त शॉट नहीं खेल पाए और क्या कमाल का कैच पकड़ा है। जबरदस्त कैच, अक्षय चौधरी। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, नजरें Catches- बनाकर रखी थी। कैचेस विनिंग मैचेस, ये फर्क है दोनों टीम में। और ये शॉट बताता है कि सामने की बाउंड्री कितनी लंबी है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। इसे पार करना आसान काम नहीं है। आउट हो गए बैट्समैन करण पाटिल। नए बल्लेबाज नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए पहुंचते हुए हर्षद पाटिल, एक और हार्ड हिटर बल्लेबाज। लेकिन स्थिति इस समय नाजुक है, 6 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। और इस समय शुभागमन होता हुआ, जिनको 2 दिन पिछले हमने मिस किया है इस टूर्नामेंट में, वॉइस ऑफ इंडिया हरीश जी पंड्या, आपका स्वागत है। गेंद को जाने दिया है दिशा इन गेंद। 2 दिन के अंतराल के बाद फिर से वो वॉइस जुड़ने जा रहा है, जो 1999 से हमारे साथ है। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, मोस्ट वेलकम। हेमंत दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। गेंद हवा में है, हवा से बातें करती हुई मैदान के बाहर नंदन पाटिल के बल्ले से खूबसूरत सिक्सर। नंदन पाटिल के खेलने के अंदाज को हम देखेंगे तो शॉट में खूबसूरती कम लगती है, लेकिन शॉट का रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है। देखिए नंदन पाटिल का आज जन्मदिन है। जन्मदिन पर सिर्फ 2 मैच जीते गए हैं भिवंडी तालुका क्रिकेट में। एक धनेश कुकसे ने बाली ट्रॉफी में दीनू भीड़ के जन्मदिन पे जीता था और एक साइंस खारबाव ने लेट आत्माराम गुलवी कप में प्रणय पाटिल के जन्मदिन पे जीता था। वरना जिस खिलाड़ी का जन्मदिन रहता है उस दिन वो टीम बहुत कम जीतती है। मैं सिटी क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, भिवंडी सिटी क्रिकेट। जहां जब भी जन्मदिन की और क्रिकेट की बात निकलती है तो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पीटर सिडल का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपने जन्मदिन पर हैट्रिक ली थी इंग्लैंड के विरुद्ध। सिडल फिर से गेंद हवा में, इस बार गैप में निकाल दिया है। एक और बढ़िया शॉट, इस बार 4 रन। नंदन पाटिल है। एक बात कहता हूँ अजय गरत, ये वाकई में वो बैट्समैन है जो देखते हैं कि फील्डर कहाँ खड़े। जब ये अपने रंग में रहते हैं तो ये गैप ऐसे ढूंढते हैं मानो ऐसा लगता है कि 11 खिलाड़ी मैदान में है ही नहीं।
जी हाँ, और मैदान की चारों तरफ खेलने की क्षमता है नंदन के अंदर। ये देखिए इस बार ऑफ साइड में कट करने का प्रयास किया था, हालांकि पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं। कवर पॉइंट पर बढ़िया फील्डिंग, सिंगल लेते हुए नंदन पाटिल। नंदन पर जल्द से जल्द बंधन लगाना होगा, नहीं तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती है कहीं ना कहीं पिंपलास टीम के लिए। खारबाव टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और 43 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। ये दूसरे ओवर का खेल इस समय चल रहा है। शॉट बनाने की कोशिश, ठीक तरह से खेल तो नहीं पाए हैं। शॉट फाइन लेग पर गेंद को उठाया जा रहा है, तब तक लेग बाय के जरिए 1 रन। हर्षद और नंदन की जोड़ी है क्रीज पर। बड़ी और तेज पार्टनरशिप कहीं ना कहीं बनानी होगी मैच को जीतने के लिए। लक्ष्य बड़ा है, 61 रन कुल मिलाकर 5 ओवर्स में बनाने हैं। 13 गेंदें बल्कि 11 गेंदें समाप्त हो चुकी है, अभी भी 19 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 42 रन चाहिए। इस बार बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन है। जानते हैं हेमंत पाटिल की स्क्वायर कट अच्छा खेलते हैं नंदन, जिस वजह से उन्होंने डिप पॉइंट रखा है। सिर्फ 1 रन इस गेंद पर, ओवर खत्म होता हुआ। 2 ओवर के बाद 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह है स्कोर साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम का। देखिए अजय गरत, यूट्यूब आने से कितना फर्क हुआ है। कौन सा बैट्समैन कहाँ बल्लेबाजी करता है, किस तरह की गेंदबाजी करता है, बिल्कुल उस तरह की बाजी या शतरंज की चाल बदल दी जाती है। 2 ओवर में रन बने कुल मिलाकर 20, और बचे हुए 3 ओवर में 41 रन चाहिए। अच्छी वापसी मैं समझता हूँ साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम की, क्योंकि पहले ओवर में 6 ही रन आए थे और 2 विकेट्स भी गिरे थे। दूसरे ओवर में 1 विकेट जरूर गिरा, लेकिन 14 रन भी आए। हरीश पंड्या, आपका हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं और प्रेजेंटेशन में है। इसके बाद के तमाम टॉस और प्रेजेंटेशन सेरेमनी को हरीश पंड्या अंजाम देंगे। ये आप उनको देख सकते हैं। मयूरेश, एडवोकेट मयूरेश पाटिल से चर्चा कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या। नंदन पाटिल खेलने के लिए तैयार। राजन पाटिल आक्रमण जारी रखते हुए पहले ओवर में काफी सफल साबित हुए। स्लॉक स्वीप की कोशिश, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा है। फील्डर मौजूद है डीप में हर्षद के रूप में। सिर्फ 1 रन। अभी तक तो साइंस खारबाव के जितने भी बल्लेबाज हैं उन पे जरूर बंधन लगा है, लेकिन नंदन पे बंधन नहीं लगा पा रहे। स्टार्ट अच्छा मिला है नंदन को, क्या वो लंबी पारी खेल पाएंगे? सिटी क्रिकेट में कहीं ना कहीं ये एक उनके खेल पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि वो लंबी पारी खेलते नहीं है। महत्वपूर्ण मैचेस में कई बार जल्दी जल्दी आउट भी होते हैं, अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद भी जल्दी आउट होते हैं। लेकिन ये बहुत बढ़िया शॉट है, हुक कर दिया लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। Great stroke played by Harshad Patil. Look at that. Use the depth of the crease. बिल्कुल खाली क्षेत्र में इलाका चुन लिया था बैट्समैन ने कि कहां पर खेलना है, किस तरह से खेलना है, वो भी उन्होंने सोच लिया था। गेंद भी उसी मुताबिक थी। हुक शॉट खेला और 4 रन प्राप्त किए। फील्डिंग में परिवर्तन, अब लॉन्ग लेग बाउंड्री पर खिलाड़ी रखा गया है। Nice improvisation. और इस बार मिस टाइम लग रहा है ये स्ट्रोक। गेंद हवा में, लेकिन 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद घूमती हुई आउटफील्ड में। बढ़िया फील्डिंग वहां पर। सिर्फ 1 रन लेने का अवसर हर्षद के पास। सिंगल की मदद से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। समीकरण यहाँ से 15 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 35 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रही है। यस, क्योंकि राजन पाटिल अपना कोटा पूरा करने जा रहे और आने वाले बल्लेबाजों में दीपक मडवी का आना बाकी है। बहुत करीब जा सकता है यह मुकाबला। राजन की अगली गेंद, इस बार जगह थी लेकिन दिशाहीन गेंद है, उसके लिए उसको खेला नहीं। वाइड। कल देर रात तक विवेक पवार की बल्लेबाजी के चर्चे थे। कई ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं मेयर कप में। गति परिवर्तन, बहुत ही बढ़िया गेंद, नंदन समझ ही नहीं पाए थे। बहुत कम करते हैं लेकिन परफेक्ट करते हैं राजन पाटिल, एक्सपीरियंस कंपेनर। ऑफ ब्रेक, बहुत ही शानदार गेंद। नंदन पहले ही सोच चुके थे कि स्लॉक स्वीप करना है, वो स्ट्रोक ज्यादा खेल रहे हैं। इस बार लोअर फुल टॉस उछाल दिया है काउ कॉर्नर की तरफ। बहुत अच्छा कैच, कप्तान मौजूद थे और कप्तान ने कोई गलती नहीं की। आप देखना है कि कैच पकड़ा है या मैच पकड़ा है।
कप्तान का कैच लिया है। ये देखिए छोटी बैकलिफ्ट थी, टक किया था, लेकिन क्या कैच पकड़ा है, इंचेस इनसाइड द बाउंड्री लाइन। अब देखने वाली बात यह है अजय गरत कि क्या वाकई में कैच पकड़ा है या मैच पकड़ा है। ओवर समाप्त होते हुए एक गेंद बाकी है, स्कोर है इस वक्त 27 रन। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं कुमार भुईर। देखिए, मैंने यही जिक्र किया कि नंदन पाटिल की ये आलोचना होती रहती है कि वो कई बार स्टार्ट अच्छा करते हैं लेकिन वो फिनिशर नहीं बन पाते हैं या फिर टीम को उस सिचुएशन में नहीं लेकर जाते हैं जहां से टीम आसानी से मैच जीत जाए। आज अक्षय पाटिल की कमी कर रही है साइंस खारबाव को, क्योंकि आज प्ले 11 में अक्षय पाटिल नजर नहीं आ रहे हैं। आउट होने से पहले 14 रनों का योगदान दिया नंदन ने। 27 पर 4 इस समय साई स्पोर्ट्स खारबाव। नए बैट्समैन नंबर 6 पर आए हैं कुमार भुईर। क्षमता रखते हैं, बल्लेबाजी कर सकते हैं, और सिटी क्रिकेट में यदि आप नंबर 6 पर खेलते हो तो ज़रूर आपके अंदर क्षमता है, इसी वजह से आप नंबर 6 पर खेल रहे हो, क्योंकि 10-11 नंबर तक भी बल्लेबाजी रहती है। ये तगड़ा प्रहार है और आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। थप्पड़ शॉट, आइए देखते हैं किस तरह से शॉट को खेला था। ये देखिए क्रीज में पीछे गए, खींच के मारा, चाबुक शॉट, फुल पावरफुल, वंडरफुल, बहुत तेज निकल गई गेंद बल्ले से 6 रन, और कह दिया कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये कहीं ना कहीं ताकत का ही कमाल है कि गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है, लगभग उनके सीने के करीब आ रही थी। आसान नहीं था ये शॉट खेलना, लेकिन बहुत ही ताकतवर शॉट। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 33 रन। 4 विकेटों के नुकसान पर बचे हुए 2 ओवर्स में जीतने के लिए 28 रनों की आवश्यकता है साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम को। What a match you are watching in Bhiwandi Open City Cricket between Science Sport Kharbao and Jai Masoba Pimplas. फील्डिंग करने वाली टीम के कैप्टन देखिए, को समय का भी ख्याल रखना होगा, मुझे लगता है। सभी टीमों को इस बात का ध्यान रखना है कि वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी जानते हैं कि हर टीम को कितने मिनट में अपना कोटा पूरा करना है। जी बिल्कुल, ऑनफील्ड अंपायर भी कहीं ना कहीं वार्न करते हुए वहां पर पिंपलास टीम को। जय मसोबा पिंपलास और साइश खारबाव के बीच में ये तगड़ा मैच। गेंदबाजी में परिवर्तन होना लाजमी है क्योंकि कोटा पूरा कर चुके हैं राजन पाटिल। 2 ओवर में उन्होंने 19 रन खर्च किए और 3 विकेट्स चटकाए। अब गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं प्रशांत। कुमार के पास स्ट्राइक, छोटे से बॉलिंग डाउन से गेंदबाजी करते हैं प्रशांत। एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट फाइन लेग और एक बैकआउट ऑफ द पॉइंट सर्कल के अंदर फील्डर। फुल टॉस है, गेंद जा रही है, जा रही है, जा रही है, चली गई मैदान के बाहर, सिक्सर। प्रशांत ने आते ही देसी घी का लड्डू खिला दिया बैट्समैन को। ये देखिए काफी आगे रखा था, और इस तरह की गेंद मानो आप शेर को मांस दे रहे हो। आपको होना ही चाहिए कि शेर को घास दो, घोड़े को मांस दो, दोनों मर जाए। बिल्कुल सही, शेर को मांस, घोड़े को घास और चंद्रमुखी को देवदास ना मिले तो तीनों की हालत गंभीर हो जाती है। 39 रन बन चुके हैं और 22 चाहिए, 11 गेंदें शेष। इस बार बेहतर दिशा के साथ, बेहतर लंबाई के साथ गेंद, और रन चुराते हुए बल्लेबाज। ओवर थ्रो हुआ है, जहां पर 1 रन बनना मुश्किल था वहां पर 2 रन और शायद और रन लेना चाहेंगे। जी नहीं, 2 रन, 22 का इशारा। आजकल अजय गरत काफी देवदास की बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे से तो कोई उदासी नजर नहीं आ रही है। वो तो कभी आएगी भी नहीं। 41 रन बन चुके हैं। यस, जिंदा दिल रहना चाहिए आदमी ने। बिल्कुल, गेंदबाज पर थोड़ा दबाव रहेगा। पहली गेंद पर सिक्सर लगा है, और ये भी शायद हो सकता है कि कैच हो। जी हाँ, कैप्टन कैचेस नहीं छोड़ रहे। काउ कॉर्नर पर बहुत ही बढ़िया कैच हेमंत पाटिल द्वारा। पल पल करवट लेता हुआ मुकाबला आप देख रहे हैं, क्या मैच हो रहा है। भिवंडी ओपन सिटी क्रिकेट के जो मुकाबले रहते हैं वो बहुत ही कट टू कट रहते हैं, और स्कोर इस वक्त है साइंस खारबाव का 41 रन, और उनके जो विकेट गिरे हैं वो है 5।
कितनी गेंदें बची और कितने रन चाहिए? 9 गेंदे 20 रन। नए बैट्समैन महेश ठाकरे बल्लेबाजी को आए हैं, महाराष्ट्र पुलिस को बिलोंग करते हैं। लेकिन अजय गरत, इनके बारे में एक बात मैं कह सकता हूँ, संतोष मडवी, दीपक मडवी, महेश ठाकरे, ऋषि पटेल, ये बहुत ऐसे नाम हैं जो बहुत ही मैच्योर्ड और बहुत ही डिसिप्लिन क्रिकेटर रहे हैं। वाकई में ये बात आपकी बिल्कुल सही है। शांत स्वभाव के ये खिलाड़ी, हमेशा डिसिप्लिन क्रिकेट इन्होंने खेला है। महेश ठाकरे नंबर 7 पर बैटिंग करने के लिए आए हैं। आज गेंदबाजी नहीं की उन्होंने, पहले मैच में गेंदबाजी भी की थी और महंगे साबित हुए थे, उस वजह से आज कहीं ना कहीं कप्तान ने उनको गेंदबाजी नहीं सौंपी, लेकिन बल्ले से उनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 9 गेंदे शेष 20 रन चाहिए। ये अगला मुकाबला ग्रामीण क्रिकेट से बहुत ही बड़ा मैच, पावर शिलार बनाम SSCC खंबालपड़ा। मेरे ख्याल से मिस्टर वैती विथ सचिन भोयर, साई शेलार है खंबालपड़ा टीम के कैप्टन। या साई शेलार और सचिन भोयर को दिखाया गया। 9 में भी चाहिए, एलिवेशन नहीं बना पाए हैं और फिर से कप्तान एक्शन में, बढ़िया फील्डिंग, केवल 1 रन इस गेंद पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। महेश ठाकरे का आपने जिक्र किया कि महाराष्ट्र पुलिस में है वो, और कानून के हाथ लंबे होते हैं, वो लंबे हाथ यहाँ पर मैदान में भी दिखाने पड़ेंगे। इस समय गार्ड लेते हुए अंपायर से, बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है जब लेकिन विजन से हम देखते हैं। कभी कभी आपको पता चाहिए कि नाकाबंदी को तोड़ा भी जाता है। गेंदबाज की कोशिश वही होगी। तेज तर्रार गेंद, बहुत ही शानदार गेंद, अच्छी वापसी की है पहली गेंद पर सिक्सर खाने के बाद प्रशांत ने। बल्लेबाजों को जरूर शांत रखा गया है उनके द्वारा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ज्यादा पीछे खेल रहे थे और लगभग फॉलो करके गेंद को किया था। इतने पीछे जाने के बाद भी यॉर्कर लेन की गेंद करना, ये जताता है कि कितनी जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है। 7 गेंदे शेष, 19 रनों की दरकार। इस ओवर की अंतिम गेंद शायद दोबारा करनी पड़ेगी। जी हाँ, बैट्समैन से बहुत दूर रखा था, वाइड घोषित कर दिया है अंपायर ने। कशमकश चल रही है गेंद और बल्ले के बीच में, गेंद और बल्ले के बीच। टाइट कर दे आली भाग रे। रुक जा बंडे, रन चाहिए जीतने के लिए, वो 12, 6 बॉल एंड 12 रन। स्कोर हुआ है 49, 49 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी बराबरी का है ये मैच, किसी भी तरफ जा सकता है। देखना है आखिरी ओवर किसको देते हैं कैप्टन हेमंत पाटिल। 6 गेंदे 12 रन, आधा दर्जन गेंदे और 1 दर्जन रन। और ये समीकरण काफ़ी मशहूर हुआ जब 2015 का विश्व कप खेला जा रहा था। सेमीफाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच में, यही समीकरण था। आखिरी ओवर में बल्कि न्यूजीलैंड के सामने, और न्यूजीलैंड टीम ने वो मैच जीता था। पहली बार फाइनल में पहुंची थी न्यूजीलैंड की टीम। यस, जब वो सिक्सर लगा था तो आपको याद होगा मॉर्कल और एबी डिविलियर्स के जो आंसू बहे थे। और ना जाने क्यों जो ऑडियंस थी दुनिया क्रिकेट की, वो ज्यादा साउथ अफ्रीका की तरफ थी। नहीं, हो सकता है, लेकिन मैं न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा था तब। न्यूजीलैंड मेरी हमेशा एक अच्छी फेवरेट टीम रही है। 6 गेंदे 12 रन। ये आप 2015 की बात कर रहे हैं, जब मैंने कहा था कि आज देखना है कि प्रतिभा विलास A1 कप का चैंपियन कौन और कल वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन, क्योंकि उसके एक दिन पहले प्रतिभा विलास A1 2015 समाप्त हुआ था। और ये देखिए, वॉइस ऑफ इंडिया हरीश जी पंड्या वहाँ पर एडवोकेट मयूरेश पाटिल से कुछ चर्चा कर रहे हैं। सचिन भोयर भी है। बहुत रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला। 6 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता साइश खारबाव टीम को।
माननीय श्री अजय पाटिल साहब भी वहां पर मौजूद, उनका भी हार्दिक स्वागत। यस, मैन ऑफ द मैच के प्रेजेंटेशन के बाद हरीश पंड्या आपको प्रियांशी स्टूडियो में गो अहेड, ये आप देख सकते हैं। और यही वो चुनौती है जिसको चैलेंज इस कप में भी स्वीकार किया, और एक बड़ा शो, भारत का A1 शो आप देख रहे हैं। 6 गेंदे 12 रन, व्हाट अ मैच। आखिरी ओवर लेकर राजा, सामने है हर्षद, घुमा दिया है, फील्डर बहुत दूर नजर आ रहे हैं लेकिन पहुंच जाएंगे। एक रन पूरा किया, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। अब 5 गेंदे और 11 रनों की जरूरत, 50 रन पूरे होते हुए साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम के। अच्छा रन चेज खारबाव टीम द्वारा। आप देखना है कि महेश ठाकरे जो 2 गेंदों में एक सिक्सर लगा चुके हैं। आखिरी ओवर इस वक्त किया जा रहा है, गेंदबाज है राजा। राजा बनाम साइंस खारबाव में मुकाबला चलता हुआ। राजा की अगली गेंद, एलिवेशन तो नहीं है लेकिन एक रन जरूर मिलेगा, और एक एक रन से मैच नहीं जीत सकती है खारबाव टीम। एक कम से कम बड़ा शॉट तो चाहिए उनको, बल्लेबाजों को भी पता है, कोशिश कर रहे हैं। हर्षद ने बढ़िया फील्डिंग की है इस मैच में, डीप मिड विकेट पर फील्डिंग करते हुए इस समय 51 रन बने हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। 4 गेंदे 10 रन। मैच यदि टाई होता है तो 2 गेंदों का बॉल आउट है, और बॉल आउट टाई होता है तो जिस टीम ने टॉस जीता है उस टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। तापमान 32 डिग्री, लेकिन मैच का तापमान 100 डिग्री। इस बार फाइन खेल दिया है और ये गेंद नहीं रुकने वाली है। 4 रन। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हर्षद पाटिल, जोखिम लिया था वहां पर उन्होंने, इम्प्रोवाइज तरीके से गेंद को खेल दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ। ये देखिए बहुत अच्छा इम्प्रोवाइजेशन, और जोखिम वही लेता है जो बहादुर रहता है, और किस्मत भी बहादुरों को सलाम करती है। इक्वेशन अब और करीब होता हुआ, थ्रिलिंग क्लाइमेक्स आप देखने जा रहे हैं। 3 गेंदे 6 रन, व्हाट अ मैच। वैसे देखा जाए तो बल्लेबाज के लिए एक गेंद में भी काम हो सकता है यदि वो बड़ा शॉट खेलते हैं तो, लेकिन 3 अच्छी गेंदें करनी पड़ेगी गेंदबाज को यदि उनको मैच जीतना है तो। राजा मैन फ्रॉम वडूनगर अगली गेंद लेकर तैयार, सामने है हर्षद पाटिल। 3 गेंदे 6 रन। अच्छी गेंद, ये पैर पर निशाना, 1 रन चुराते हुए बैट्समैन लेग बाय। रन आनी जरूरी, चाहे वो किसी भी तरह से क्यों ना आए। बहुत ही रोमांचक स्थिति में ये मैच, रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला। बहुत अच्छी गेंद थी, दोनों टांगों के बीच में रखा था। इस बार केवल 1 रन मिला है। 2 गेंदे शेष, 5 रनों की आवश्यकता है साइश खारबाव टीम को। कशमकश, कट टू कट मुकाबला, फोटो फिनिश मैच, नेक टू नेट फाइट गोइंग ऑन। 2 गेंदे 5 रन। अब तक 40 प्लस के 2 मुकाबले बराबरी पे छूटे, और चैलेंज ए और चैलेंज बी का। महेश ठाकरे के पास स्ट्राइक, 1 सिक्सर जड़ चुके हैं 7 पर बैटिंग करते हुए। 3 गेंदों का सामना किया है। ये गेंद बता देंगी कि मैच टाई पे जा रहा है या किस तरफ जा रहा है, कहना मुश्किल। एलिवेशन नहीं बना पाए हैं, इनसाइड एज लगा है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके खिलाड़ी गेंद पर आए, बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। अब नतीजा निकलेगा अंतिम गेंद पर, शायद उस पर भी ना निकले, टाई भी हो सकता है। 1 गेंद शेष है, 4 रन चाहिए। गोल्डन बाउंड्री की जरूरत, जबकि गोल्डन 6 एक लग चुका है अभी तक महापौर चषक में, कारियोली के सामने लगाया था। बिल्कुल, वाकबिल के बैट्समैन चेतन ने वो छक्का जड़ा था जब अंतिम गेंद पर 5 रनों की आवश्यकता थी। दोनों बल्लेबाज आपस में चर्चा करते हुए, अब क्या चर्चा हो रही होंगी। 1 गेंद 4 रन चाहिए। एक बात तो है कि बल्लेबाज के मन में दुविधा नहीं रहेगी, उनको बड़ा शॉट तो खेलना ही है। पसीना पसीना पूछा जा रहा है। कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आप देखना है कौन इतिहास लिखता है, बदलता है, और कौन इतिहास बन जाता है। क्या जबरदस्त लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई ने महापौर चषक की शान और भी बढ़ाई। 1 गेंद 4 रन। व्हाट अ मैच। हर्षद के पास स्ट्राइक, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, कैप्टन, और कोई गलती नहीं। बहुत ही बढ़िया कैच अंडर प्रेशर हेमंत पाटिल द्वारा। मुकाबला जीत लिया है पिंपलास टीम ने। जय मसोबा पिंपलास की शानदार जीत। कॉन्ग्रेचुलेशन कैप्टन हेमंत पाटिल, राजन पाटिल, हर्षद चौधरी, एंड हार्ड लक
नंदन पाटिल हार्ड लक, दीपक मडवी हार्ड लक, महेश ठाकरे। जय मसोबा पिंपलास ने मुकाबला जीत लिया है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिन्होंने 12 गेंदों में 25 रनों की बहुत खूबसूरत बारी खेली। यंग अक्षय चौधरी इज द मैन ऑफ द मैच। अगले मैच की जब शुरुआत होगी तो आपके साथ रहेंगे मनीष पाटिल, ओमकार शेट्टी और हरीश पंड्या। लेकिन हम आपको लिए चलते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ। हरीश पंड्या के पास मैन ऑफ द मैच अक्षय चौधरी, 12 बॉल 25 रन्स। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशी स्टुडिओ। तो महापौर चषक 2021 मध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। हायलाइट्स तुम्ही बघत आहात कशा पद्धतीने हा सामना आपल्या बाजूने फिरवला पिंपळा संघाने आणि अक्षय चौधरी या सर्व जे दृश्य तुम्ही बघत आहात प्रिन्स मूवीज आणि त्यांचे सर्व जे टेक्निशियन्स आहेत, क्रिकेटचा तंत्र काय जगभरात प्रसिद्ध झालेलं असं हे प्रक्षेपण अगदी युट्यूबवर प्रिन्स मूवीज आणि tenniscricket.in च्या माध्यमाने लक्षावधी लोक आज घरी बसून याचा आनंद घेत आहेत। घरी, ऑफिस, सलून, कार मध्ये अगदी एखादा बेकरी मध्ये सुद्धा आपलं टेलिकास्ट आणि भरपूर ठिकाणावरनं कौतुकाची वर्षाव होत आहे। तर मित्रांनो, आता आपण सामनावीरचं पारितोषिक देण्यासाठी सज्ज होत आहे आणि अक्षय टाकळकर आणि सौरभ पाटील, पोगावचे सुपुत्र सौरभ पाटील आणि अक्षय टाकळकर स्वतः मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग केलंय ज्यांनी, आणि त्यांचा एक वेगळा लुक आहे, म्हणजे जसा मॉडर्न एक तरुणचा लुक असतो। आणि हे दोन्ही ॲडव्होकेट मयुरेश पाटील यांचे जिव्हाळ्याचे मित्र सुद्धा आहेत आणि त्यांचं शुभ असते हे महापौर चषकचा चेक, ट्रॉफी आणि 1000 रुपये रोख। तर अभिनंदन अक्षय चौधरी, खूप खूप धन्यवाद अक्षय टाकळकर आणि सौरभ पाटील। अक्षय अर्थात सामना जास्त नाही विचारणार रे मित्रा, पण एक मोठ्या संघासमोर तुमचा सामना सुरू होता आणि 12 चेंडूमध्ये 25 धावा तुझे कामी आले। बॅटिंग कशी वाटली या खेळपट्टीवर? खूप छान वाटते, खूप छान वाटली। आणि तुमचे जे गोलंदाज आहेत त्यांनी आज जी गोलंदाजी केली त्याच्याबद्दल काय सांगू इच्छितो? शेवटच्या 2 चेंडूवर 5 धावा हवे होते। राजादानी खूप चांगली गोलंदाजी केली, त्याच्यामुळे जिंकलो मी। तर मित्रांनो, हे आहेत अक्षय, ज्याचा कधी क्षय होत नाही तो आहे अक्षय। अक्षय चौधरी, तू यशाचा उत्तुंग शिखर गाठावं आणि खूप बक्षीस मिळवावे अशा आमच्याकडून हार्दिक शुभेच्छा आहेत। तर मित्रांनो, याच बरोबर आपण वळत आहोत परत एकदा प्रियांशी स्टुडिओमध्ये। खूप खूप धन्यवाद।